everyone, welcome back to Summarize and Memorize. I'm Shrishti Agarwal and today I'm going to start the new series that is Discrete Mathematical Structure, or in short DMS. So the first topic which I have choose is integer arithmetic, and I'm going to devote 3 lectures for it. So for an overview, in this lecture we are going to cover introduction, divisibility and the greatest common divisor. Now we have one Euclidean theorem in it, which I'm going to teach you how to, solve the questions using Euclidean theorem. So watch it till the end. So what are the integers or the set of integers को हम denote कैसे करते हैं? So we all know that is denoted by capital Z, and it is from negative infinity to positive infinity. I have listed some of the few real life example which will be the integer. Now, the branch of mathematics that involve integer and the properties of integer is known as the number system. So, integer arithmetic is the subject under number theory. Okay. Now, it has many applications. To name the few, it's the cryptography and network security. And there are few questions after which you will understand it's important in cryptography. Okay. So, if I get a chance, I'm going to solve it. Okay. Now, what do you mean by binary operation? So when I'm talking about integer, उन operations को मैं binary operation कहूँगी जिनको imply करके मेरा output भी z आए. I mean integer ही आए. मतलब कि addition, subtraction, multiplication. अगर आप दो numbers का जो कि एक integer होंगे उनको add करो, subtract करो या multiply करो, you will always get an integer. But this is not the case of division. That's why division is not a binary operation. क्योंकि अगर आप दो integers को divide भी कर रहे हो तो आपका जो आंसर आएगा that is not an integer. ठीक है, तो एक अलग division अपन ने इसमें बनाया है and that is integer division. तो उसका जो नाम होगा that will be an integer division. Clearly नाम से पता चल रहा है वो division जिसका हमारा जो result आएगा ना that will be an integer. So in integer arithmetic, if we divide a by n, we get q and r, जिसका relationship ये है. तो basically सिर्फ integer arithmetic में नहीं है, हर जगह, like you talk about polynomial or anything. Division means dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. So this equation is valid for all type of division, whether it's a integer division, normal division, or polynomial division, anything. Now, to talk about basic few things, अगर आप दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर निकलता है क्वेश्चन और एक आपका निकलता है रिमाइंडर. ठीक है, इसको मैं ए और बी मान लेती हूँ फॉर टू अवॉइड द कंफ्यूजन. तो ये जो बी है दिस कैन नॉट बी जीरो. वाई? बिकॉज जीरो हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी विल बी इंफिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड. तो जो अपना डिवाइजर होता है दैट हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर, while the remainder cannot be negative. It can be zero. Obviously remainder can be zero. तब अपन divisor को factor बोलते हैं and dividend को multiple बोलते हैं whenever remainder is zero. So remainder can be zero, positive, but cannot be negative, while divisor has to be a positive integer. Okay. So अपन इंटीजर डिवीजन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइक नॉर्मल डिवीजन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि a इज डिवाइडेड बाय b. तो हम इंटीजर डिवीजन को भी किसी सिंबल से तो रिप्रेजेंट करते ही होंगे. वो सिंबल होता है ये स्ट्रेट स्लैश. ओके, अब इसके जब इस साइड आता है ना दैट इज द डिवाइजर, और जो इस साइड आता है दैट इज नोन एज द डिविडेंड. मतलब कि कंफ्यूज कभी नहीं होना. लाइक व्हाट आई पर्सनली डू, जब भी मैं ये सिंबल देखती हूँ ना मैं इसे उल्टा करके लिख लेती हूँ दैट इज a by n. सिंपली इसका मतलब क्या है दैट a इज द डिविडेंड, n इज द डिवाइजर. अच्छा, अब इसको रीड कैसे करते हैं? ऐसे रीड करते हैं दैट n डिवाइड्स a. इसे हम ऐसे रीड करते हैं. सो बेसिकली दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीजर डिवीजन. ये सिंबल देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई हमारा जो रिजल्ट आएगा या जो हमारा आउटपुट होने वाला है ना दैट विल बी एन इंटीजर. और इसे हम रीड कैसे करते हैं दैट n डिवाइड्स a. And to avoid the confusion or to increase the numerical speed, I will suggest कि जैसे आप ये देखो आप इसे ऐसे लिख लो. क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इससे जल्दी इंटरप्रेट कर पाएगा, राइट? सो दिस इज जस्ट अ टिप. Okay. Now,
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी. बस इसमें इतना ही था कि दिस इज द सिंबल एंड इसका मतलब होता है कि जो हमारा आउटपुट होगा दैट विल बी एन इंटीजर. दिस वी ऑलरेडी नो. तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी है. अगर आपको a/1 लिखा गया तो आप a की वैल्यू अपने आप बता सकते हो. कैसे? चलो अब लॉजिकली सोचते हैं. इसे मैं लिख सकती हूँ 1/a. अब आप मेरे को ये बताओ a की मैं ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि भाई मेरा आउटपुट एक इंटीजर ही आए. आप a की वैल्यू कुछ भी रखो, लाइक 2 रखो, 3 रखो, ये देखो एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो a की वैल्यू या तो फिर 1 होगी या फिर -1 होगी, जिससे कि मुझे एक इंटीजर आउटपुट मिल पाएगा. So this is the first property. Similarly, the second property. If b is divided by a and a is divided by b and दोनों का ही आउटपुट एक इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब कि a is equals to plus minus b. I mean the magnitude has to be equal. They can differ in sign because integers can be negative or positive. Now, what the third property say? That if b is divided by a and c is divided by b, we can say that c is also divided by a. Obviously, just cross multiply this. Just multiply this. b will be cancelled and c will be divided by a. We already know that the answer will be an integer. And what the property 4 says, this is really easy. Let me show you. Okay. तो ये क्या बोल रहा है ना, दैट b इज डिवाइडेड बाय a एंड c इज डिवाइडेड बाय a. तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ दैट m इंटू बी प्लस n इंटू सी इज डिवाइडेड बाय a? हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ. क्यों? देखो, a को मैं इन दोनों जगह अलग अलग लिख लेती हूँ, क्योंकि अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो आपको ऊपर वाला ही मिलेगा. तो a को मैंने अलग अलग लिख लिया. देखो, b अपॉन a मेरे को ऑलरेडी इंटीजर देगा, c अपॉन a मेरे को ऑलरेडी एक इंटीजर देगा, और m और n एक इंटीजर c है. और हमें ये पता है दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन. दैट मीन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई टू इंटीजर द आउटपुट विल बी एन इंटीजर. तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा. सो आई होप नाउ यू नो ऑल द 4 प्रॉपर्टीज. All are easy, right? Okay. So now we have to talk about the greatest common divisor. Now the new topic has been started, that is GCD, जिसका एक और नाम होता है दैट इज HCF. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप सभी को HCF तो पता ही होगा, ये हमें बचपन से ही आता है. ठीक है, तो HCF बोलो या GCD बोलो, एक ही बात है. यू विल गेट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ओके, so let us assume that we have 24 black pen and 30 blue pen. तो मेरे पास black pen कितने हैं? 24 है, और blue pen कितने हैं? 30 है. मुझे ऐसे इन पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर एक स्टूडेंट को इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्लू पेन मिले. तो फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक ए है और एक बी है. अगर ए के पास 2 ब्लैक पेन है तो बी के पास भी 2 ब्लैक होंगे. अगर ए के पास 3 ब्लू पेन है तो बी के पास भी 3 ब्लू पेन होने चाहिए. तो मुझे ऐसे कितने बच्चे मैं ले सकती हूँ जिनमें मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ? तो ऑब्वियसली आपको सेंस हो रहा होगा कि भाई मेरे को 2 नंबर दिए हैं 24 और 30, और इसका मुझे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है या फिर मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो इसके लिए मुझे जीसीडी निकालना होगा. जीसीडी एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एक नंबर के फैक्टर्स लिखो, दूसरे नंबर के फैक्टर लिखो और कॉमन वाले निकाल के मल्टीप्लाई कर लो. ये तो हमें सभी को ही आता है. So 24 can be written as 2 into 12, 12 can be written as 2 into 6 and 6 can be written as 2 into 3. तो ये होगा मेरे 24 के फैक्टर. 30 के होंगे 5 into 6 that is 2 into 3. तो देखो 2 into 3, 2 into 3 कॉमन निकल गया, तो इसका जो आंसर आएगा that is 6. तो I can distribute black and blue pen in 6 student equally, जिसमें हर एक स्टूडेंट के पास कितने ब्लैक पेन आएंगे? 24 divided by 6 will be 4. तो 4 तो ब्लैक पेन आए, एंड ब्लू पेन कितना आएंगे? 5. दैट इज 30 divided by 6. So I hope you got this question. This is very very easy and अपन ने 5th या 4th standard में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे. Now the most important topic we are going to start, that is the Euclidean theorem. अभी तक हमने क्या पढ़ा? इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नंबर थ्योरी क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में है. व्हाट डू वी मीन बाय इंटीजर डिवीजन? व्हाट इज इट्स रिप्रेजेंटेशन? इट्स 4 प्रॉपर्टी. व्हाट आर द बाइनरी ऑपरेशन एंड व्हाट इज
GCD or simply the HCF? No. अब जो एक important और जो new thing आती है, that is the Euclidean algorithm. Euclidean algorithm is nothing but a theorem which tells us some of the steps जिन्हें हम follow करके GCD निकाल सकते हैं. बट GCD तो बहुत easily हम निकाल सकते हैं, तो ये थ्योरम की क्यों नीड आई? तो ये थ्योरम की तब नीड आई जब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपके पास दो बहुत ही बड़े नंबर है, तो उनकी अगर आपको GCD निकालनी है ना, तो बहुत मेहनत लगेगी कि आप एक एक के पूरे पूरे फैक्टर लिख रहे हो, फिर इसके फैक्टर निकाल रहे हो, फिर कॉमन निकाल रहे हो, एंड देन अगेन मल्टीप्लाइंग इट. So it's a long procedure, and since DMS is a topic of GATE exam also, you should know some of the theorem or the trick जो आपकी calculation को easy करे और आपका time save करे. For it, we have a Euclidean theorem. जिनमें ये step पढ़ने की जरूरत नहीं, you will get confused. I'm telling you the two fact, जिस fact के basis पे Euclidean theorem निकली है. पहला fact क्या है कि आपके पास एक नंबर है 4 और एक नंबर है 0, तो इसका GCD क्या होगा? 0. Most of the people will say, but the correct answer is 4 and not 0. So this is the fact number 1, that the GCD of a 0 and a number A will give a number A and not the 0, right? Even though we have nothing in common. 4 का होगा 2 into 2 and 0 का क्या ही होगा? इसका लॉजिक समझो, तो 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आएगा. तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, 0 into 2 into 2. कॉमन क्या निकला? ये निकल गया. खैर इसके बीच में मत जाओ, इसके बैक थॉट पे मत जाओ, बस इतना लर्न कर लो that the GCD of A, 0 will be A, and GCD of A, B will be equal to the GCD of B, R, where R is the remainder of dividing A by B. ठीक है, तो बेसिकली आप ए बी का GCD निकालो या फिर B और A, B इनका GCD निकालो, एक ही बात है. फैक्ट नंबर 2 वोंट बी यूज डायरेक्टली. ये फैक्ट हमने यूक्लिडियन थ्योरम में यूज किया है. चलिए अब सीख लेते हैं करना क्या होता है. तो देखो, आपको ना 3 टेबल बनानी होती है, जिसमें से पहले लिखना होता है पहला आपका नंबर, दूसरा नंबर, और यहाँ लिखना होता है रिमाइंडर. तो ये हमारे 3 कॉलम बनते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 25 और 60. मुझे इन दोनों का GCD निकालना है. आपको 2 स्टेप करने हैं बस. क्या करना है? पहले स्टेप में आपको करना है A/B, मतलब कि फर्स्ट कॉलम डिवाइडेड बाय सेकंड कॉलम. एंड सेकंड थिंग व्हिच यू शुड डू इज शिफ्ट. शिफ्ट क्या होता है? अब क्वेश्चन के थ्रू समझो. तो देखो, A डिवाइडेड बाय B करोगे, आपका रिमाइंडर क्या होगा? 25. ठीक है, तो ये मैंने पहली चीज निपटा दी. अब क्या करो? शिफ्ट करो. शिफ्ट क्या करना है? ऐसे. ऑब्जर्व द एरो विच आई एम डूइंग. तो अब यहाँ आप 60 लिख लो, यहाँ आप 25 लिखो. फिर से रिपीट करो ये दोनों स्टेप. A/B, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? इट विल बी 20, आई मीन 10. 10 हो गया. पहला स्टेप कर लिया, दूसरा स्टेप करो शिफ्ट, वापस से शिफ्ट कर दो. तो यहाँ लिखो 25, यहाँ लिखो 10. फिर से डिवाइड करो A/B, इट विल बी 5, 5 लिख दो. फिर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 5. ठीक है, वापस से डिवाइड करो A/B, दैट विल बी 0, एंड फिर से शिफ्ट कर दो, दैट इज 5 and 0. अब आप नोटिस करो कि मेरा B तो बचा 0 और मेरा A बचा 5. सो व्हाट इज द HCF ऑफ 5, 0? इट विल बी द 5. So as soon as you get the 0 in column number 2, the answer will be the value of column number 1. Okay, it's that easy. तो यूक्लिडियन थ्योरम हमें ये बोलता है कि like you have to do just 2 steps. First, divide the first column by the second column, second shift, and repeat the procedure जब तक कि आपको B की वैल्यू 0 नहीं मिल जाती. क्योंकि जैसे ही आपको B की वैल्यू 0 मिलेगी, आपके पास A की जो भी वैल्यू है, that will be the HCF or the GCD. So that's all. So there are few of the practice questions जिनके आंसर्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है. And now, if you have any suggestions or query, feel free to contact us through our email, that is summarizeandmemorize@gmail.com. Thank you so much for watching.